गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे एंड आई मीन दैट्स माय टेक ऑन द सब्जेक्ट एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल ट्राई एंड इनफैक्ट रादर आई वुड से बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स इसको बहुत अलग तरह से देखते हैं। लिक्विडिटी और ये यहाँ पर लिक्विड होता है, वहाँ पर ऐसे होता है। ये somehow I have not been able to grasp that concept as such in last 14-15 years of my practice in the financial industry. And I genuinely feel that it's a flawed narrative which kind of gets floated around, and the idea there is कि आपको बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा या बहुत क्विक इजी मनी का ल्योर जो जो क्रिएट किया जाता है, दैट probably is the reason as to why this idea of liquidity is shown, or that's how it is kind of the mind shift is created. So I have tried to structure the talk today in whatever best I could. Let's progress there. So let's first try and answer this question itself. What is liquidity? Where, when, how? I mean, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी तरह का एसेट लेते हैं, कहीं पर आप कुछ बाइंग करते हैं, व्हाट इज लिक्विडिटी? सो अगर हम इसको वैसे एक नॉर्मल टर्म्स में बात करें इन टर्म्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, देन लिक्विडिटी इम्प्लॉइज डिजायरेबिलिटी। मैंने आज कोई चीज ली और अब मैं उसको मार्केट में बेचने के लिए जाता हूँ, तो वो और कितने लोगों को उस चीज की डिजायर है और कितने बायर्स उसको लेने के लिए इंटरेस्टेड होंगे. So if I look at it in terms of investment and I say that, whether my investment is liquid or not, then it would be that in due time, that means आज अगर मुझे उसको बेचने की जरूरत है, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट लिया जिससे मुझे आज बेचने की जरूरत है, तो क्या मेरे पास में वो आज मैं उसे बेच पाऊंगा? इज देयर मार्केट अवेलेबल वेयर देयर आर डिजायरेबल बायर्स at a due price? That means the price at which I intend to sell it, a price at which I have a certain expectation. Would I be able to meet the due price? And does that due price also give me an expected or a projected profit? If these things are met, then I can say that the investment is either liquid or it is not illiquid. And investment is not instant cash, it is not ready money that we cannot consider liquidity in an investment as instant cash. That is not the idea. The idea is that I make an investment today with a certain expectation of a profit and a certain expectation of a time duration, और उस वक्त जो मेरी वो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो करके अगर मैं उस इन्वेस्टमेंट को उस ड्यू प्रॉफिट के साथ, उस ड्यू प्राइस के साथ, उस ड्यू टाइम में सेल कर पाता हूँ, then the investment is liquid, otherwise it is not liquid. But any investment is not instant cash कि आज पैसा दिया और ले लिया. That's not the idea in terms of, and that should not be the idea of liquidity when we are trying to understand these two concepts of investment and liquidity. So moving on, is there a hierarchy of liquidity कि कौन सी चीज ज्यादा लिक्विड होती है, कौन सी कम होती है, what asset class is more? So yes, okay, in a very technical financial term, we can say yes, there is an hierarchy of liquidity. The most liquid is the money or the cash which you have in your hand, जिसको कैश इन हैंड बोलते हैं, पॉकेट में समझ लीजिए, वॉलेट में समझ लीजिए, यूपीआई में समझ लीजिए. That's the most liquid cash available to you, which basically most of us spend it without consideration and without giving too much of forethought. मैं अगर आज एटीएम से अपने 2000 रुपये निकाल लेता हूँ, अपनी पॉकेट में डाल लेता हूँ, तो वो 2000 रुपये इज एज गुड एज स्पेंट. आई हैव हार्डली सीन पीपल जो एटीएम से किसी काम के लिए 2000 रुपये निकालते हैं और 1700 रुपये खर्च होते हैं, तो 300 रुपये वापस जाकर के एटीएम में या अगले दिन बैंक की लाइन में जाकर के वापस से जमा कराते हैं. सो द मनी विच यू हैव इन हैंड is liquid, it gets finished. Next, उसके बाद जो सेविंग अकाउंट में डाल दिया उसकी लिक्विडिटी आपने थोड़ा सा रिड्यूस कर दी. And then starts the cycle of commitments, or rather to say the hierarchy of commitments. If you commit some money to a fixed deposit, उसकी लिक्विडिटी को आपने रिड्यूस कर दिया, because
अब बैंक जो है वो आपसे एक नियर टाइम के लिए कमिटमेंट मांग रहा है कि आप 3 साल रखेंगे, 6 महीना रखेंगे, 5 साल रखेंगे, और उसी के हिसाब से the bank is going to give you a certain interest on the money which you have committed to them. So then it is slightly less liquid. ठीक है, आप एफडी बीच में ले सकते हैं, बट देन इफ यू डू दैट देयर इज अ पेनल्टी ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच द बैंक इज रेडी टू पे यू। पहले अगर उसने 5% एग्री किया था, बीच में तोड़वाएंगे अपनी एफडी, तो आपको 4% देगा। नेक्स्ट स्टेप, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाते हैं, सो दे कट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैव अ सर्टेन कूपन कि वो 6 महीने या 1 साल के लिए या 2 साल के लिए 4 साल के लिए आपका पैसा रखेगा, उसके बाद में आपको वापस करेगा। सो यू हैव मेड मोर कमिटमेंट्स। नेक्स्ट, अगर आप इक्विटीज लेते हैं सेकेंडरी मार्केट में, दे आर इवन मोर इलिक्विड। आज आपने टाटा स्टील एक्स अमाउंट पे खरीदा और या आईजीएल एक्स अमाउंट पे खरीदा, कल आप बेचने जाएंगे तो आपको उसमें ग्रोथ नहीं मिल जाएगी एक ही दिन के अंदर। उसके बाद में अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं इक्विटीज में ऑफ द मार्केट, वो और ज्यादा इलिक्विड है, बिकॉज वो जब तक प्राइवेट प्लेसमेंट से एक्सचेंजेस में आएंगी एंड दे विल स्टार्ट हैविंग मोर बायर्स एंड सेलर्स एंड एक्सेप्टेंस इन द सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंजेस, उस प्राइवेट प्लेसमेंट के दौरान और जो सेकेंडरी मार्केट के जो जो ड्यूरेशन का टाइम होल्डिंग है वो जो आपके पास रहेगा और उसके नंबर ऑफ बायर्स कम होंगे, उसकी लिक्विडिटी और कम होती है, बिकॉज यू मेड अ मोर स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट। स्टार्टअप्स में इक्विटी लेते हैं वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट। रियल एस्टेट के अंदर अगर आप एक ऐसी जगह खरीदते हैं जहां पर ऑलरेडी खरीद फरोख्त चलती है, लोग बस गए हैं, शहर आ गए, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में अगर आप जनकपुरी में, द्वारका में कहीं खरीदते हैं, सो दैट्स मोर कंपेरेटिवली मोर लिक्विड, बट इन सब से कम लिक्विड है। उसके बाद अगर आप कहीं पर कोई अपकमिंग एरिया में खरीदते हैं, आज आप भिवाड़ी खरीदते हैं, तो आपको 10 साल 15 साल वेट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स द अमाउंट ऑफ कमिटमेंट विच इज रिक्वायर्ड। सो दैट्स द हायरार्की ऑफ लिक्विडिटी। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, व्हेन आई वाज डिस्क्राइबिंग ऑल दिस, आप जितना ज्यादा इलिक्विड एसेट लेते हैं, the opportunity for your money to make money, the opportunity for your money to give you growth, the opportunity for your money to be able to compound and meet your obligations, that becomes that much higher. आज जो मेरा कैश इन हैंड है वो मुझे कुछ भी नहीं देता है। मेरे अकाउंट में आज 100 रुपए का नोट है, अगर वो 1 साल भी रह जाता है वो 100 ही रुपया रहता है। देयर इज एब्सोल्युटली नो ग्रोथ ऑन इट। बट इफ आई एम एबल टू होल्ड ऑन अ प्रॉपर्टी, एंड आई विल से दिस टुडे, लेट्स से इन अ प्लेस लाइक भिवाड़ी, जिसे आज कोई बात नहीं करता होगा, वहां पे अगर आज मैं एक रीजनेबल प्राइस की प्रॉपर्टी खरीद के 20 साल बैठ जाता हूँ, मुझे उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट। बट वुड आई हैव द पेशेंस टू होल्ड ऑन फॉर 20 years? दैट्स अनदर क्वेश्चन, वो आगे की बात है। बट दैट्स द हायरार्की ऑफ लिक्विडिटी, एंड व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड हियर इज द मोर illiquid an asset is in the due course of time, by the time it becomes liquid, the profitability or the growth or the return on that investment is going to be that much higher as compared to more liquid an asset, the lesser the returns I get on it. So it can be very safely concluded that liquidity actually destroys the basic idea of wealth creation. Now, इन्वेस्टर्स को ये लिक्विडिटी की इतनी इच्छा क्यों रहती है? लोग, आपको जो फाइनेंशियल लिटरेचर है या एडवाइजरी है या लोग कि इसमें लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को एक बैक ऑफ द माइंड बेसिक टेंशन क्या रहती है कि कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया मैं निकल ना पाऊँ। कमिटमेंट करनी, making a good investment implies commitment, it implies diligence, it implies that you'll make that effort, understand, get into the fundamentals. और आप कमिटमेंट नहीं करेंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे। सो यस, एट टाइम्स आपको समझते जानते शॉर्ट टर्म के लिए, एंड व्हेन आई से शॉर्ट टर्म, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, दैट शॉर्ट टर्म कैन बी even 20 years if that is what my desired goal is. और हम बहुत बार 20-20 साल की कमिटमेंट जिंदगी में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बी अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड इफ यू आर समवन हु इज गोइंग टू स्टडी दैट मच, तो आपने अपनी पढ़ाई के लिए जिंदगी में 12 साल तो पहले आपने स्कूल की पढ़ाई करी और उसके बाद 10 साल आपने स्पेशलाइजेशन, तो दैट्स अ 22 year कमिटमेंट। ओनली आफ्टर दैट यू स्टार्ट गेटिंग द रिकग्निशन एंड पेमेंट ऑफ अ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर। आप वो कमिटमेंट नहीं करेंगे, आप 12वीं करने के बाद में सोचेंगे कि मेरे को स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की इज्जत और पैसा मिल गया, नहीं मिला।
आप जितना चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लीजिए, आप जब तक शादी का कमिटमेंट नहीं करेंगे और बच्चों को बड़ा नहीं करेंगे तब तक आपको वो खुशी नहीं मिलेगी. सो यू नो द एम ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज नॉट टू गेट यू सम काइंड ऑफ अ mental comfort. The aim of an investment is to be able to handle that insecurity and discomfort, knowing fully well कि हाँ इसके अंदर ये परेशानियां होंगी, और मुझे ये पता है कि ये मेरा मेरा मन मुझे बैकग्राउंड में, मेरी लैक ऑफ नॉलेज मुझे बैकग्राउंड में कह रहा है कि कहीं फंस तो नहीं जाएंगे. फिर भी मैं फंसूंगा, फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा, फिर भी मैं इस इन्वेस्टमेंट को करूंगा, बिकॉज फंडामेंटली मेरे को इसके अंदर सब कुछ सही लग रहा है. And fundamentals differ from asset class to asset class. What is a fundamentally strong equity? What is a fundamentally strong mutual fund? Okay, mutual fund is actually on top of an asset class, but still उसके भी कुछ fundamentals हैं. What is a fundamentally strong real estate? आप fundamentally सही investment करें, short term के लिए हो सकता है आप उसको बेच भी ना पाए, but उस वजह से वो गलत नहीं हो जाता. That's a commitment you are making. And even though I would say that, as an investor, instead of craving liquidity, you should crave liquidity and commitment, and go ahead with well considered, well thought, well worked options to make your investments. Moving on, मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट का मकसद क्या है? मेरे हिसाब से when I work with my clients, the idea of an investment is to make money, to grow rich, to be able to meet obligations. The idea of an investment is not comfort. The idea of an investment is not ease. उसके लिए तो फिर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या? आराम से घर में बैठिए, और अगर आप नौकरी पेशा है, नौकरी मिल रही है, आगे पेंशन मिल जाएगी. Why even bother about these things? The idea is that you create assets, you create wealth, you create inheritances. And why do you do that? बिकॉज जब ये सब चीजें होती है, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आपको ओवरऑल आपका जो नेटवर्थ है वो आपको आपका भरोसा देता है, और आप अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकते हैं. बिकॉज आप जो भी कमाते हैं उसमें से आप थोड़ा ही बचा पाते हैं, और आपकी ऑब्लिगेशंस आपकी ओवरऑल कमाई से ज्यादा होती है. अगर आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे तो आप फाइनेंशियली अपनी ऑब्लिगेशंस में फेल हो जाएंगे. And if you want to do that, then you should not be bothered about investments. If you want to fail in your obligations, if you don't want to do that, then if you want to be a person who has been able to generate enough of assets and wealth to be able to meet the long term, or rather to say the goals of life, the financial obligations of life, then you will have to come out of that need for mental comfort. नहीं है भाई कंफर्ट, हाँ मुझे पता है कि ये इस चीज में इतना समय लगेगा, मुझे पता है कि 10 लोग ये बोलेंगे यार तूने ये क्या कर दिया, यहाँ कहाँ पैसे फंसा दिए. दैट्स ओके. You are not answerable to them, you're answerable to your children, you're answerable to yourself. And इन्वेस्टमेंट्स का मतलब ही लॉन्ग टर्म है. इन्वेस्टमेंट्स का मतलब ही ऑब्लिगेशंस को मीट करना है. इन्वेस्टमेंट्स का मतलब कैश फ्लो जनरेट करना है. कैश फ्लो जो एसेट्स आपने क्रिएट किए, आपने एक इक्विटीज का एक एक एसेट बेस बिल्ड किया, वहां से जो आपको डिविडेंड्स आते हैं वो आपका कैश फ्लो. आपने प्रॉपर्टीज का जो एक एक एसेट बेस क्रिएट किया, वहां से जो आपको रेंटल्स आते हैं वो आपका कैश फ्लो. इन्वेस्टमेंट से आप दो ही फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. वन इज टेकिंग केयर ऑफ योर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स योर डिपेंडेंट्स, इन एसेंशियलिटी योर चिल्ड्रन, उनकी पढ़ाई, उनकी शादियां. और दूसरा, अपने लॉन्ग लाइफ में जब आप शरीर से कमाने की हिम्मत से बाहर हो जाते हैं, उम्र हो जाती है, पर जिंदा रहते हैं और आपको और पैसे की जरूरत होती है, विच वी कॉल एज रिटायरमेंट, विच वी में कॉल एनीथिंग. पॉइंट इज यू आर नॉट इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव बट यू स्टिल नीड मनी. सो एट दैट टाइम यू नीड कैश फ्लोज, जिसको हम पेंशन प्लानिंग कहते हैं, किसी भी तरह की अंग्रेजी कह सकते हैं. ये दो ही प्रॉब्लम्स आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से सॉल्व करनी होती है. And life में there are actually speaking no emergencies. We assume there are emergencies. There are no emergencies. Emergencies is something which is unexpected. तो आप अपनी unexpected, which is to say, your health and life के रिस्क की, मेरे को मैं मर ही ना जाऊं, मेरी बीमार ना हो जाऊं, उसको आप इंश्योरेंस से कवर कीजिए. उसको आप इक्विटी पोर्टफोलियो बना करके और उसको बेच करके कवर नहीं करते हैं. उसके लिए आप
कायदे का टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, अपने हिसाब का हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, अगर आपका एम्प्लॉयर वो प्रोवाइड करता है देख लीजिए वो सफिशिएंट है तो उसकी जरूरत नहीं है. अदर देन दैट देर आर नो इमरजेंसीज. Other than that, there are goals, there are obligations, there are time-bound obligations. If I have a daughter who is 9 years old, I know कि वो 9 साल बाद 18 साल की होगी और वो जब 18 साल की होगी तो उसकी पढ़ाई के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए था. That's a financial obligation. So I don't need liquidity. I need to look at a asset class which after 9 years will give me that much desired exit, or maybe the capacity to raise an education loan. So I need money to fulfill that obligation. So there are no emergencies. Emergencies can actually be planned and prepared for, and the moment you plan and prepare for an emergency, it's easy to be an emergency. It's an expense which you can fulfill by taking a life insurance and an health insurance. In fact, hospitals में भी जो emergency wards होते हैं उनके procedures होते हैं. So आपको भी अपनी जिंदगी में procedures को कायदे से set करना होता है. And you have financial obligations. Investments are always there to be done for long-term financial obligations, and that is the core of investments. For your month-on-month, week-on-week, day-on-day expenses, you earn salaries or you earn an income from your business or you earn your pension. That's how you meet your month-on-month, year-on-year, week-on-week kind of an expense, जिसको हम working capital बोल सकते हैं. बट लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस आपको इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लॉन्ग टर्म ही होंगे और वही आपको सोचना है. सही तो सही ही रहेगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स आप कीजिए. ये परेशान ना हो कि इसमें मैं इसको बेच पाऊंगा नहीं बेच पाऊंगा. योर फोकस शुड बी डूइंग द राइट थिंग्स. द स्कोर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. आप अपनी सही प्रैक्टिसेस करें. आप अगर आपके क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हैं तो खाना अच्छा बनेगा. एक आइटम अच्छा नहीं बन रहा है आपको तो थाली से जानी है ना. पूरी थाली के अंदर अलग 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 करते जाएंगे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल क्रिएट अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. एक आधा कुछ आगे पीछे हो भी गया बिकॉज इन ऑल डिसीजन मेकिंग्स देयर कैन बी एरर्स. नो प्रॉब्लम. जैसे क्रिकेट का टीम है, मैंने अच्छे बैट्समैन का 5-6 का लाइनअप किया. एक डक पर जा भी सकता है, दूसरा उसके लिए कवर कर लेगा. देन आई हैव अ कपल ऑफ ऑलराउंडर्स एंड देन आई हैव अ गुड लाइनअप ऑफ बॉलर्स. जब मेरी इस तरह की टीम तैयार हो जाएगी और मैं कॉन्स्टेंटली मैचेस खेलता रहूंगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माय विनिंग परसेंटेज विल इंक्रीज. सिमिलर इज द केस विद योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. आप शुरू में कुछ एक थोड़ा सा कैश कॉर्पस बिल्ड कर लेते हैं. फिर आप थोड़ा सा उसके बाद में इस तरह के इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं पीएफ टाइप और एटसेट्रा, सो दैट यू हैव दैट. अगर कोई आज मैं अपना एक एसेट बेस तैयार कर रहा हूँ. So these are those all-rounder, middle of the performance kind of investment. And then you make those heavy commitments कि आप strong batters या strong bowlers लाते हैं. Those who are match winners for you. और फिर उसके आप वैसे 3-4 क्रिएट करते हैं कि एक फेल हो जाए तो दूसरा. And that's how you actually go and meet the match winning formula. आप सारे ऑलराउंडर्स ले आओगे फेल हो जाओगे. आप सारे बैट्समैन लेके आओगे तो भी फेल हो जाओगे. आप सारे बॉलर्स लेके आओगे तो भी फेल हो जाओगे. So finding that balance and being fundamentally right is how you will be able to meet your financial obligations. और उसमें लिक्विडिटी टाइम बाउंड होती है. इस चीज की जरूरत मुझे 10 साल बाद है तो मैं इस तरह का एसेट क्लास लूंगा जहां मुझे पता है कि 10 साल बाद अगर आज मैंने ग्रेड ए इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया विच इज ब्लू चिप कंपनी ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस, तो मुझे उसमें 8 से 9 10% का ग्रोथ मिलेगा. बट मैं उसको 5 साल बाद बेच पाऊंगा एट दैट काइंड ऑफ अ ग्रोथ. बट मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पेंशन प्लानिंग के लिए कुछ क्रिएट करना है तो मैं धारूहेड़ा जाऊंगा और वहां पर एक प्रॉपर्टी खरीदूंगा जो 30 साल में बेच नहीं पाऊंगा. बट धीरे 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 मेरा कैश फ्लो बढ़ता रहेगा और उसके बाद में मेरे को इतना कैश फ्लो आएगा कि वहीं से मेरी पेंशन जो है ऑगमेंट हो जाएगी. सो दीज आर टू डिफरेंट डिसीजंस. बोथ आर करेक्ट एंड लिक्विडिटी हैज नो पार्ट टू प्ले इन दिस. यू हैव टू बी फंडामेंटली राइट. अब एक ये ट्रेडर्स जी मैंने इतने में खरीदा इतने में बेच दिया, आई दिस इज जस्ट frankly speaking ego massage. Why? Because 99% of the traders throughout the history of mankind have always failed. And I'm not talking about business traders. वो तो अपना व्यापार कर रहे हैं. मैं बात कर रहा हूँ जो अपने आप को बहुत काबिल समझ के
फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडिंग करते हैं, फिर वो चाहे ट्रेडिंग रियल एस्टेट में करते हैं और चाहे वो इक्विटीज में करते हैं, किसी में भी करते हैं, 99% ऑफ देम फेल। एंड व्हाई डू दे फेल? बिकॉज एक तो ट्रेडिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, एवरी टाइम यू आर डूइंग अ ट्रेडिंग, यू आर मेकिंग incurring cost on brokerages, you are incurring cost on duties, the government expenses, you are incurring cost on transaction। आपने कुछ खरीदा, कुछ बेचा, तो आपने ब्रोकरेज दिया, स्टैम्प ड्यूटी दिया। रियल एस्टेट में हर ट्रेडिंग की कॉस्ट लगभग 6 से 10% होती है। और जब आप फास्ट इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं, जो इंट्रा डे इंट्रा वीक ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो डेली की कॉस्ट इंकर करते हैं, वो भी साल के एंड में जाकर के 8-10% हो जाती है। मतलब अगर आप ट्रेडिंग करें 8 से 10% तो आप कॉस्ट में ही दे देते हैं, आप पैसा कमा ही नहीं पाएंगे वो करके। अगर आप हर 2 से 3 साल में रियल एस्टेट खरीदते बेचते हैं, आप पैसा कमा ही नहीं पाएंगे। ट्रेडर्स के साथ जो है उनके ब्रोकर्स पैसा कमाते हैं, ब्रोकर्स को ट्रेडर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज उनको खूब सारा पैसा कमाते हैं। they are constantly working with traders because their traders are constantly selling, buying and paying a brokerage on every transaction. So as a broker, I am very happy working with traders. That makes me money. But if you are an investor, trading is something you should consciously make an effort not to get into. और अगर if that is another reason as to why you crave liquidity, you will never be able to make money. खुश बहुत रहेंगे आप शॉर्ट टर्म में, और कई बार ये खुशी 3, 4, 5 साल भी चल जाती है जब मार्केट में बुल रन्स होते हैं कि देखो मैं कितना काबिल हूँ, मैंने तब ये खरीदा था, 3 साल में इतने का हो गया, अब मैंने बेच दिया, अब मैं नेक्स्ट। और फिर आप फंसते हैं, और ऐसा फंसते हैं कि आपको मजा आ जाता है। वो सारे पुराने जो आपके इन्वेस्टमेंट हैं साफ हो जाते हैं। लिक्विड रियल एस्टेट कितना है लिक्विड है, इसके बारे में मुझसे पूछा जाता है, तो मैं आई विल बी वेरी वेरी क्लियर एंड फैक्चुअल इन दिस। आप कैसा भी रियल एस्टेट खरीदिए, 5 साल मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा उसकी बेसिक कॉस्ट प्लस एक एक एग्जिट होने की। रीजन मीन, एक तो रियल एस्टेट की एंट्री ट्रांजेक्शन कॉस्ट बड़ी है। मैं आज रियल एस्टेट खरीदता हूँ, सस्ते से सस्ता 5-6% तो सरकार ले जाती है, स्टैम्प ड्यूटीज एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, ब्रोकरेजेस हैं, लीगल कॉस्ट है, बैंक से अगर लोन लिया है तो बैंक की ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, वो प्रोसेसिंग फीस, ये वो। सो आप कुछ भी करते हैं, आपकी ओवरऑल अपफ्रंट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एंटरिंग अ रियल एस्टेट एसेट इज एनीथिंग फ्रॉम 8 to 10%। इसका मतलब कि जो मुझे पहले साल की बढ़ोतरी मिलनी है वो तो मेरी वहीं चलेगी ट्रांजेक्शन कॉस्ट में, फिर मुझे धीरे 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 बढ़ोतरी मिलेगी। तो अगर आप ऐसे मार्केट्स में जहां ऑलरेडी आज आज लोग बस गए हैं, शहर बस गया है, खरीद फरोख्त होती है, जहाँ कंपैरेटिवली फॉर सेल यूनिट्स कम मिलती हैं, वहां भी आपको 5 साल चाहिए कायदे के। इट्स लाइक बाइंग अ ग्रेट इक्विटी। वहां पे आपको 5 साल, वहां भी आपको लगता है आज अगर आप HDFC लिमिटेड का शेयर खरीदते हैं, HDFC बैंक का शेयर खरीदते हैं, तो आपको प्रॉफिटेबल एग्जिट में 5 साल लगेगा। वो ऑलरेडी 35 के पी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, लेकिन लेकिन हाँ, 5 साल बाद आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट कुछ कम मुनाफे के साथ मिल जाए। सेम इज विद रियल एस्टेट। आप द्वारका में आज फ्लैट खरीदते, 5 साल बाद आप उसको निकालेंगे, कुछ फायदा हो जाएगा, बहुत फायदा नहीं होगा। आप जहां भी अपकमिंग एरिया ग्रीन फील्ड लोकेशन में खरीदेंगे, वहां आपको डिपेंडिंग कि वो कितना दूर है, कहाँ पर है, सिटी सेंटर से कैसे है, आसपास में क्या है, एनीथिंग फ्रॉम 15 to 20 years मिनिमम लगता है। और अगर आप उससे पहले बेचने की कोशिश करेंगे तो आपको बायर नहीं मिलेंगे, फिर आप कहेंगे कि ये तो लिक्विड नहीं है, क्योंकि आप जिस प्राइस पर बेचना चाहते हैं उस पर बायर्स नहीं है, तो आपको नुकसान खा के बेचना पड़ेगा। अभी तो आपकी तरफ से अपफ्रंट निवेश ही लग रहे हैं, वो प्रॉपर्टी मेच्योर ही नहीं हुई। सो एनी ग्रीन फील्ड लोकेशन, वेदर इट इज रांची के आउटस्कर्ट्स हैं, चाहे वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स हैं, चाहे मुंबई के आउटस्कर्ट्स हैं, किसी भी शहर के आउटस्कर्ट्स, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सिटी, उससे वो कितना दूर है, उसके बेसिस पर 15, 20, 25 साल तक कमिटमेंट करके ही आगे बढ़े, आपको बहुत फायदा होगा। फंडामेंटली सही प्रॉपर्टी ले, प्रॉपर्टी बना हुआ होना चाहिए, कागज साफ सुथरे होने चाहिए, बिल्डर ठीक होना चाहिए। ज्यादा वो बहुत सारे परपंच में आज आपको ऐसा कर दूंगा, मैं एश्योर्ड रिटर्न दे दूंगा, आज एक का 5 ले लो, 10 के 50 ले लो, वो बेचने के लुभावने तरीके, उनसे बच करके फंडामेंटली सही रियल एस्टेट लीजिएंगे
तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन 5 से 25 साल का होराइजन है, वो आपको अपने मन में रख करके ही रियल एस्टेट में आगे बढ़ना चाहिए। उसमें आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चिंत तौर पर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत जल्दी फायदा नहीं। लास्ट पॉइंट है मेरा आज का कि समय के साथ लिक्विडिटी पर, और लिक्विडिटी के अंदर डिजायरेबिलिटी, जो मैंने शुरू में बोला था कि मेरे सामान को और अब कितने लोग खरीदने के इच्छुक हैं, तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का एसेट, वेदर इट इज इक्विटीज और रियल एस्टेट, उसकी डिजायरेबिलिटी बढ़ती जाती है। सो मैं डॉक्टर वाले एग्जांपल पर जाता हूँ। 12वीं के बाद में लड़के ने सीपीएमटी निकाल ली, तो उसके अभी मार्केट वैल्यू कम है, बट हाँ थोड़ा सा भरोसा आ गया कि उसने सीपीएमटी निकाल लिया। अब वो अच्छे कॉलेज में चला गया, उसने 5 साल खूब मेहनत करी, मेरिट लिया, तो उसकी डिजायरेबिलिटी ज्यादा हो गई, उसको एक बेटर तनख्वाह मिल गई। फिर उसने एमएस किया और डिजायरेबिलिटी बढ़ गई, फिर उसने एमसीएस किया, डीएम किया और बेटर हो गया, फिर वो एक्सपीरियंस लेने लगा, किसी टाइम में नामी गिरामी डॉक्टर साहब हो गए। तो जैसे जैसे समय बीता, बिकॉज फंडामेंटली द पर्सन वाज राइट, फंडामेंटली उसने अपनी तरफ से मेहनत लगाई। इसी तरह अगर आप फंडामेंटली राइट एसेट क्लासेस, वेदर इट इज इक्विटी या रियल एस्टेट में लगाएंगे, और जितना उनको समय लगता जाएगा उनकी डिजायरेबिलिटी बढ़ती है, वो उतना ही लिक्विड और उतने ही ज्यादा डिजायरेबल हो जाते हैं। इनफैक्ट एट टाइम्स उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है, जब बहुत लॉन्ग टाइम हो, कि बहुत से लोग तो खरीद ही नहीं पाते हैं। आज कनॉट प्लेस की प्रॉपर्टीज जिन्होंने आज से 100 साल पहले खरीदी होंगी, वो बेचने जाते हैं, उन्हें बायर्स नहीं मिलते, इसलिए नहीं कि वो इलिक्विड नहीं है, बिकॉज वो लोगों की बाइंग कैपेसिटी से बाहर हो गया, उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई। ऑल्दो दे डोंट एक्चुअली नीड टू सेल इट, क्योंकि उन्हें वहां से बहुत अच्छे हैंडसम रेंटल कैश फ्लोज मिलते हैं। सो द पॉइंट इज दैट टाइम इज एक्चुअली something which is going to help you continue to grow the liquidity and desirability of rightly chosen assets. Thank you for your time. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind.